we'll be having module 3 of open channel flow, and this will be the last module of open channel flow. After this video lecture, we will move forward to our next unit. So up to module 2 we have studied about the open channel, its different forms, different geometrical properties, what is most efficient channel section. Now in this section we will understand what is Froude number and how Froude number is important in the case of open channel flow. We will define specific energy and we will differentiate on the basis of specific energy and Froude number. We will differentiate open channel flow as critical flow, subcritical flow and supercritical flow. And at the last of this lecture we will study what is hydraulic jump, what are its characteristics, and how hydraulic jump are used for various operations. Without wasting time, we will start our lecture. The first part of today's lecture is Froude number. Now you understand, Froude number is a dimensionless number. It means it has no unit. इसकी कोई यूनिट नहीं होती. It is square root of ratio of inertia force to the gravity force. It means Froude number will be equal to ratio of inertia force Fi upon gravity force. अब now you can ask why this Froude number we are studying is open channel flow. Because in open channel flow the flow is taking place without any external help. The flow is taking place with the help of gravitational force under the action of gravity. That's why Froude number plays a very important role in the case of open channel. Now this was the mere definition of Froude number. Now when you sum up that equation, Froude number equation, you get the final equation of Froude number in this final formula in this form. Froude number is equal to velocity upon root g. G is, you know, acceleration. dH is hydraulic mean depth. We had already discussed this parameter, which is equal to weighted area upon top width, which is equal to weighted area upon top width. So always remember, here D is not only the water depth, it is hydraulic mean depth, means weighted area upon top width. It means that DH will be different for different section. It means DH will be different for rectangular, it can be different for triangular, it can be different for trapezoid channel. You can also write Froude number in this equation like this. Froude number is equal to square root of q square t upon a cube g, because here you see it is Froude number whole square. So you can also write Froude number is equal to square root of q square up t upon g into a cube. Okay. Now I have already spoken that Froude number is very important, and on the basis of Froude number we do classify different types of flow. So अगर Froude number की वैल्यू 1 से कम है तो उस फ्लो को क्या कहते हैं हम लोग? सब क्रिटिकल फ्लो. अगर Froude number की वैल्यू 1 के बराबर है तो उस फ्लो को हम लोग क्या कहेंगे? क्रिटिकल फ्लो. अगर Froude number से ज़्यादा 1 से ज़्यादा है तो उस तरह के फ्लो को हम लोग क्या कहेंगे? सुपर क्रिटिकल फ्लो. We will also see this chart at the last of this Froude number content. We will analyze various factors along with it.
Now we will see what will be the Froude number formula in the case of rectangular channel. We have already learned that it is the ratio of inertia force to the gravity force. Ratio means it is square root of, actually it is ratio, but it is square root of inertia force to the gravity force. Always remember. In the case of rectangular channel, Froude number will be equal to V upon root gy. V upon root gy. You understand, we defined V is equal to V upon root GD, whereas D was hydraulic mean depth. Hydraulic mean depth is equal to area. Area, what would be the area? By upon top width. Top width would be B. So B and B will be cancel out. So hydraulic mean depth will be equal to Y. You got? So this equation reduces to V upon root gy. So always remember, in the case of rectangular channel, the Froude number equation will be V upon root gy. So you cannot put V upon root gy in case of different channel section. For a triangular channel section, it will be different, because here Y is coming from hydraulic mean depth. Do not put V upon root gy for every section. Always remember. Perhaps you got point what is Froude number and how it is used. Now always remember it is ratio of square root of inertia force to the gravity force. It is actually ratio, but it is square root of inertia force upon what? Gravity force. Always remember. Now we will move forward to our next slide, and we will see what is the application of Froude number. In this slide we will analyze what is application of Froude. हमने फ्रॉड नंबर के बारे में पढ़ लिया है. अब फ्रॉड नंबर क्यों यूज होता है, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि चूंकि ओपन चैनल सेक्शन में ग्रेविटी प्लेज ए वेरी डोमिनेंट रोल, क्योंकि ग्रेविटी के कारण ही फ्लो हो रहा है, और जो फ्रॉड नंबर है ये डायमेंशनलेस नंबर है जो कि इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटी फोर्स पे डिपेंड करता है. इसीलिए ओपन चैनल फ्लो में हम लोग फ्रॉड नंबर यूज करते हैं. योर फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर. अब फ्रॉड नंबर की क्या रेलेवेंस है, तो फ्रॉड नंबर की वैल्यू से हम डायरेक्ट फ्लो के टाइप को बता सकते हैं. किस तरह का फ्लो है? अगर फ्रॉड नंबर की वैल्यू 1 के बराबर है तो फ्लो क्रिटिकल होगा. अगर फ्रॉड नंबर का वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो फ्लो सुपर क्रिटिकल होगा, और अगर फ्रॉड नंबर का वैल्यू 1 से कम है तो फ्लो जो होगा वो सब क्रिटिकल होगा. तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. ये तो था कि फ्रॉड नंबर का आप यूज कर रहे थे फ्लो के प्रॉपर्टी को डिफरेंशिएट करने के लिए. और दूसरा हम लोग एट द लास्ट ऑफ दिस लेक्चर वी विल सी कि फ्रॉड नंबर के बेसिस पे हम लोग हाइड्रोलिक जंप के टाइप को भी डिफरेंशिएट करते हैं. वी विल सी. सो हियर डिफरेंशिएटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड नंबर. और फ्रॉड नंबर का दूसरा हम लोग और भी यूज करते हैं जब फ्रॉड नंबर के बेसिस पे वी डिफरेंशिएट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक जंप. हम लोग हाइड्रोलिक जंप के अलग अलग टाइप्स को अलग अलग करते हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, एंड वी विल सी कि ये जो हमने अभी आपको इसके स्लाइड के पहले आपको बताया था कि ये जो क्रिटिकल फ्लो होता है, सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है और सब क्रिटिकल फ्लो होता है. बेसिकली ये चीज़ फ्रॉड नंबर से तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये बेसिकली है क्या, ये किस तरह के फ्लो को हम बोलेंगे. ये तो समझ में आ गया कि ये क्रिटिकल है, सुपर क्रिटिकल है, सब क्रिटिकल है. मतलब इसको एक्चुअली ऑन द फिजिकल ग्राउंड हाउ वी विल डिफाइन. तो हम लोग उसको डिफाइन करने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी. तो कि एनर्जी का कंसेप्ट क्या है, और उस एनर्जी के कंसेप्ट से ही ओपन चैनल फ्लो में on the basis of energy, on the basis of particularly specific energy, we differentiate 3 types of flow, that is critical, supercritical and subcritical.
सो यू सी यहाँ पे एक चैनल है, आप देखिए ये चैनल का ये बॉटम बेड है, ये वाला बेड, और वो बॉटम बेड कुछ इंक्लाइंड है, मतलब किसी हॉरिजेंटल डेटम के साथ, ये थीटा के साथ इंक्लाइंड है। तो ये जो बॉटम का हाइट है, एक्चुअली डेटम से बॉटम का हाइट जेड है, इसकी जो डेप्थ है, ये वाटर डेप्थ है, ये वाई है, और ये जाहिर सी बात है कि इसमें काइनेटिक हेड होगा, बी स्क्वायर अपॉन 2g है। तो यू सी दैट द टोटल एनर्जी in the case of open channel would be summation of z, that is datum head, this z, plus y, this is corresponding to pressure head, p by rho g plus v square upon 2g. So this will be the equation of total energy. ये total energy का equation होगा। z क्या है, किसी datum से इसकी height है potential, y क्या है, ये जो पानी का जितना depth है, ये v square 2g क्या है, इसके kinetic head है। वी ऑलवेज नो कि जो प्रेशर HGL होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होता है, वो डेटम हेड और प्रेशर हेड के बराबर होता है। तो इन द केस ऑफ ओपन चैनल जो HGL होगा वो कोइंसाइड करता है किसके साथ, वाटर सरफेस के साथ, आप देख सकते हैं। इट विल ऑलवेज कोइंसाइड विद दिस टॉप ऑफ द वाटर सरफेस HGL। और जो टोटल एनर्जी लाइन होता है वो क्या होता है, डेटम हेड, प्रेशर हेड और काइनेटिक हेड, हमेशा HGL के ऊपर होगा। कितना ऊपर होगा, काइनेटिक हेड के ऊपर। यू कैन सी इज दिस लाइन TEL। नाउ अब ये जो टोटल एनर्जी है सारा, ये टोटल एनर्जी किसके फॉर्म में है, टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट, पर यूनिट वेट। टोटल एनर्जी क्या है, पर यूनिट वेट, पर यूनिट वेट। ओके, नाउ वी विल सी these are the notations that I have already cleared. Z is height of bottom channel above the datum, Y is depth of liquid and V is mean velocity. If the channel bed is taken as datum, अगर आप इसको datum ना मान के, ये जो आपका actual datum है, इसको datum ना मान के चैनल बेड को datum मान ले, मतलब इसको datum मान ले, ठीक है, तब टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी, तब एनर्जी का इक्वेशन क्या होगा, y प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये तब जब आप चैनल बेड को ही बॉटम मान लेते हैं, डेटम मान लेते हैं, तब जो टोटल एनर्जी का इक्वेशन होगा वो रिड्यूस हो जाता है y प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2g, और तब इस टोटल एनर्जी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक एनर्जी। ऑलवेज रिमेंबर, तो यही एनर्जी, टोटल एनर्जी स्पेसिफिक एनर्जी हो जाता है जब आप चैनल बेड को डेटम मान लेते हैं, क्योंकि वहां पे फिर जेड को आप एलिमिनेट कर दिए। तो दिस इज the all about the specific energy. Specific energy of a fluid in a channel is defined as energy per unit weight of liquid measured from channel bed as datum. देख रहे हैं, एनर्जी पर यूनिट वेट, ये पर यूनिट वेट है ऑफ द लिक्विड मेजर्ड फ्रॉम चैनल बेड, मेजर्ड फ्रॉम चैनल बेड एज डेटम, चैनल बेड एज डेटम से मेजर किया हुआ। यू सी दो दिस इक्वेशन इज वेरी सिंपल, y प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2g। अब आप इसको डिस्चार्ज के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो भी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, डिस्चार्ज अपॉन एरिया इज इक्वल टू वेलोसिटी। अब ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी जो चैनल विड्थ है अपॉन वाई स्क्वायर, मतलब जितना पानी है, ठीक है। तो यहां से इस इक्वेशन को आप यहाँ यार को आप लिख सकते हैं, बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। एनर्जी का जो स्पेसिफिक एनर्जी का जो कर्व बनता है, आप देखिए, अब आपका इक्वेशन आपने क्या किया, ये भी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर जैसे लिखा है। अब आप देखिए कि यहां पे E का जो इक्वेशन आया था, E इज इक्वल टू वाई प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन इंटू 2g, ये इक्वेशन था। अब आप क्या कीजिए, Q बाय बी को एक पैरामीटर होता है, उसको बोलते हैं डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। तो ये Q बाय बी को आप छोटा क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे छोटा क्यू स्क्वायर लिख दिया, और फिर बाकी सारा इक्वेशन यही है। तो आप इस तरह से भी जो है किसको
स्पेसिफिक एनर्जी के कर्व को निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। E इज इक्वल टू वाई प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2g वाई स्क्वायर, वेयर स्मॉल q इज डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। अब देखिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेना। आप देखिए, जो आपका स्पेसिफिक एनर्जी है वो दो चीज़ है। स्पेसिफिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, और स्पेसिफिक एनर्जी उसी इक्वेशन में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1 अपॉन वाई स्क्वायर के। यू कैन सी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था y से और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। तो हमारा जो अगर हम स्पेसिफिक एनर्जी और डेप्थ में अगर हम कर्व खींचेंगे, ये y एक्सिस पे हमने डेप्थ दिया है, यू कैन सी हियर, और x एक्सिस पे हमने स्पेसिफिक एनर्जी लिखा है। तो दो एक आया था E इक्वल टू वाई, तो ये जो पहला कर्व है E इक्वल टू वाई, ये उसके पहले पार्ट के कारण था। और दूसरा आया है E इक्वल टू E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, मतलब ये पैराबोलिक कर्व होगा, ये पैराबोलिक कर्व हुआ। तो ये जो टोटल जो कर्व बन के आया है, यही है टोटल स्पेसिफिक एनर्जी का कर्व विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ। तो यू सी दिस इज द स्पेसिफिक एनर्जी, दिस इज हाउ द स्पेसिफिक एनर्जी चेंजेस। दिस इज, ये स्पेसिफिक एनर्जी का ये था, नीचे में एक्सेस था और ये डेप्थ का एक्सेस था। तो दिस इज हाउ स्पेसिफिक एनर्जी इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ। ठीक है, अब इस चीज को आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। अब इस चीज में आप ध्यान दीजिए, यहां पे भी जैसे फ्रॉड नंबर में हमने क्रिटिकल, सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल फ्लो को डिफाइन किया था, स्पेसिफिक एनर्जी के कर्व से भी हम क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल और सब क्रिटिकल को ये करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो क्रिटिकल डेप्थ वह डेप्थ होता है जिसके अबाउट स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होता है। अब बताइए, इस कर्व में सबसे कम स्पेसिफिक एनर्जी कहाँ पे है, यहाँ पे है, देख लीजिए, यहाँ पे सबसे कम एनर्जी है ई मिनिमम। तो उसके अबाउट जो डेप्थ होगा उसको कहते हैं हम लोग क्रिटिकल डेप्थ। ये वाई सी, ये क्या है, क्रिटिकल डेप्थ। ये क्या है, क्रिटिकल डेप्थ। समझ में आ गया? तो मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी के अबाउट जो डेप्थ होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ। आई थिंक यू गॉट, ठीक है। और अगर किसी भी चैनल में उसका स्पेसिफिक एनर्जी, देखिए यहाँ पे ये तो अगर किसी भी चैनल में आपको स्पेसिफिक एनर्जी उसका निकालना है तो आप क्या करेंगे, मिनिमम मतलब जो क्रिटिकल डेप्थ है उसके अबाउट आप एनर्जी इक्वेशन लगा दीजिए, तो वहाँ आपको स्पेसिफिक एनर्जी निकल जाएगा। इससे आपको यहाँ से क्लियर हो गया। दूसरा चीज ये देखिए, यू कैन सी फ्रॉम दिस कि अगर आपकी जो डेप्थ है वो क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा होगी, देखिए ये अगर ये डेप्थ अगर आपकी क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा है, जैसे ये मान लीजिए ये पॉइंट था एक, तो ये क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा था, तो वो हो जाता है सब क्रिटिकल डेप्थ। मतलब वो क्या हो जाता है, ये ऊपर वाला जोन की, ये वाला जो जोन है वो क्या है, सब क्रिटिकल का, y इज ग्रेटर देन वाई सी। ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई यहाँ पॉइंट है, मान लीजिए कोई यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, तो इसकी डेप्थ कितनी, इतनी कम होगी। अगर कोई आपकी जो है क्रिटिकल डेप्थ से कम हुई तो उसको क्या कहते हैं, ये वाला जो जोन है इसको, ये क्या हो जाएगा, सुपर क्रिटिकल का, y इज लेस देन वाई सी, y इज लेस देन वाई सी। परहैप्स यू गॉट ऑल द पॉइंट्स। मैं फिर से रिवाइज करा लेता हूं कि मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो डेप्थ होता है उसको क्रिटिकल डेप्थ कहते हैं, ये आपने देख लिया। और अगर डेप्थ आपका क्रिटिकल से डेप्थ से ज्यादा है तो वो हो जाएगा सुपर क्रिटिकल, ये ऊपर वाला रीजन, ये सुपर क्रिटिकल हो जाएगा। ठीक है। और अगर डेप्थ आपका क्रिटिकल डेप्थ से कम है तो वो हो जाएगा, सॉरी, और अगर आपका डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ से ज्यादा है तो वो हो जाएगा सब क्रिटिकल, बेग योर पार्डन। और अगर आपका डेप्थ अगर क्रिटिकल डेप्थ से कम है तो ये हो जाएगा सुपर क्रिटिकल। परहैप्स यू गॉट माई पॉइंट। तो एक तो फ्रॉड नंबर से आप कर पा रहे थे उसको कि फ्रॉड नंबर 1 है, तो आप ऐसे भी समझिए कि क्रिटिकल डेप्थ, ये क्रिटिकल डेप्थ है, क्रिटिकल डेप्थ के अबाउट जो फ्रॉड नंबर होगा वो कितना होगा,
1 के बराबर, वो फ्राउड नंबर कितना होगा 1 के बराबर। ये जब ऊपर ये सब क्रिटिकल डेप्थ है तो इसका फ्राउड नंबर कितना होगा ऊपर वाले रीजन का f लेस देन 1। और ये जो ये नीचे वाला पोर्शन है जो सुपर क्रिटिकल है इसमें इसका फ्राउड नंबर का वैल्यू क्या हो जाएगा f ग्रेटर देन 1। परहैप्स आई मेड इट समवॉट क्लियर। अब आप देखिए एक और कंसेप्ट है। अब यू कैन सी फ्रॉम दिस ग्राफ दैट कि किसी एक स्पेसिफिक एनर्जी पे दो डेप्थ हो सकता है। मान लीजिए आपका स्पेसिफिक एनर्जी यहाँ पे आपने देखा, तो यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी देखने के लिए आप क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, इसके बाद ये खींचे, तो इस स्ट्रेट लाइन को आपने खींचा तो उसमें दो डेप्थ मिला। देखिए एक डेप्थ ये मिला, मान लीजिए इसको y1, और एक डेप्थ ये मिला, मान लीजिए इसको आपका ये डेप्थ है y2। तो वह डेप्थ मतलब दो डेप्थ होगा, वह डेप्थ जिसके अबाउट स्पेसिफिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है, स्पेसिफिक एनर्जी सेम रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट डेप्थ। ठीक है, तो जैसे कि देखिए एज इट इज क्लियर फ्रॉम द EY डायग्राम, फॉर कांस्टेंट डिस्चार्ज फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ E देयर वुड बी two possible depths, say y1 and y2, and these two depths are called alternate depths. These two depths are called alternate depths. अब यहाँ पे एक चीज बोला है फॉर ए कांस्टेंट डिस्चार्ज। आपने कांस्टेंट डिस्चार्ज क्यों माना, क्योंकि आपने इसलिए कांस्टेंट डिस्चार्ज माना था क्योंकि आपका E का वैल्यू किसके साथ सिर्फ यहाँ पे चेंज हो रहा था, डेप्थ के साथ। अगर Q भी चेंज करता तो ग्राफ इस तरह का आपका नहीं रहता। तो ये जो कर्व आपने बनाया है E और Y के बीच में, ये किसके लिए बना था, कांस्टेंट डिस्चार्ज के लिए। तो आप अल्टरनेट डेप्थ अगर आपको डिफाइन करने बोले तो अल्टरनेट डेप्थ इज दैट डेप्थ एट विच देयर विल बी सेम स्पेसिफिक एनर्जी एट टू डेप्थ। मतलब देखिए इस E1 पर दो डेप्थ मिल रहा था, एक y1 मिल रहा था, एक y2 मिल रहा था, तो y1 y2 क्या हो जाएगा, अल्टरनेट डेप्थ। हो गया क्लियर। नाउ यू सी ये जो C था पॉइंट, ये जो C था, इसके अबाउट मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी मिल रहा था, इसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल डेप्थ। वी हैव डिफाइंड क्रिटिकल डेप्थ। सो द क्रिटिकल डेप्थ में भी ऑल्सो बी डिफाइंड द डेप्थ करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी वेयर डिस्चार्ज रिमेन कांस्टेंट। अब इसमें भी वही है कि डिस्चार्ज को आपने कांस्टेंट कर लिया है क्योंकि यहाँ पे आपका इस कर्व में क्या है, E और Y के बीच में रिलेशन है। परहैप्स वी अंडरस्टूड दिस इंपॉर्टेंट ग्राफ। तो हमने दो तरह से डेप्थ को डिफाइन किया है, क्रिटिकल, सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल डेप्थ को, एक स्पेसिफिक एनर्जी कर्व से और दूसरा हमने फ्रॉड नंबर से। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, जब हम लोग देखेंगे हाइड्रोलिक जंप कि व्हाट इज हाइड्रोलिक जंप और स्टैंडिंग वेव। बेसिकली हाइड्रोलिक जंप मतलब कहने का मतलब है दो वर्ड से आता है, पहला है हाइड्रोलिक और दूसरा है जंप। हाइड्रोलिक मतलब जो पानी के साथ जुड़ा है, जंप मतलब उसमें उछाल, मतलब देयर इज सडन राइज, दैट्स व्हाई यू कॉल इट जंप। तो यू विल डिफाइन हाइड्रोलिक जंप एज हाइड्रोलिक जंप इज नॉन यूनिफॉर्म फ्लो रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन फ्लो फ्रॉम सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल। मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है, मतलब कि अलग अलग सेक्शन पे जो फ्लो प्रॉपर्टीज होगा वो क्या होगा, अलग होगा। ये कब होता है, जब आपका जो फ्लो है वो सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में चेंज करता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज वेरी सिंपल, हम लोग ग्राफ के साथ, स्केच के साथ देखेंगे, इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। दूसरा में है इन द हाइड्रोलिक जंप देयर इज डिसकंटिन्यूटी इन द सरफेस characterized by steep upward slope of the profile accompanied by lot of turbulence and eddies. The eddies cause energy loss. कहने का मतलब होता है कि जो हाइड्रोलिक जंप में डिसकंटिन्यूटी होता है सरफेस का, मतलब सरफेस सेम लेवल पे नहीं होता है और अचानक से आगे की दिशा में वो स्टीप अपवर्ड स्लोप होता है, ठीक है, जिसके कारण बहुत टर्बुलेंस जनरेट होता है और ईडीज भी जनरेट होता है। दिस इज ईडीज। अभी हम बताएंगे ईडीज क्या है। सो यू सी, अब इस पहला वाला जो आपका स्केच है उसमें देखिए,
कि मान लीजिए किसी स्लुइस गेट से या डैम से पानी आ रहा था, तो ये हाइड्रोलिक जंप को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे पहले पानी क्या था, सुपर क्रिटिकल था ये पानी, और उसके बाद अचानक से स्टीप अपवर्ड हो गया, अब बढ़ गया, और उसका ये सब क्रिटिकल डेप्थ में चेंज हो गया। तो कैसे कैसे फ्लो का प्रॉपर्टी चेंज हुआ, सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल। इसके दौरान क्या हुआ देखिए, सडन चेंज इन द डेप्थ, मतलब नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है, और स्टीप अपवर्ड स्लोप, ये अपवर्ड स्लोप मिल रहा है, अचानक से अपवर्ड स्लोप हुआ है, जिसके इसके कारण क्या हुआ, और ईडीज जनरेट हुआ। ईडीज के कारण क्या होता है, लॉस होता है, एनर्जी का लॉस होता है। अब व्हाट इज ईडी लॉस? एक्चुअली जब आपका फ्लो सामने से इस तरह से जाए और अचानक से किसी टर्बुलेंस की वजह से, किसी डिसरप्शन की वजह से आपका फ्लो घूमने लगे, और जिस दिशा में जा रहा है उसके रिवर्स डायरेक्शन में वेव प्रोड्यूस होने लगे, तो इसको ही हम लोग कहते हैं ईडीज, इसी को कहते हैं हम लोग ईडीज। और इस ईडीज के कारण क्या होता है, जो आपकी जो एनर्जी होती है फ्लो की, वो एनर्जी जो होती है वो कम होने लगती है, वो कम हो जाती है। Perhaps you got this point also. Now the third is कि the depth before and after the hydraulic jump is known as conjugate depth or sequent depth. तो जो डेप्थ हाइड्रोलिक जंप के पहले है और जो डेप्थ हाइड्रोलिक जंप के बाद है उसको बोलते हैं हम लोग कंजुगेट डेप्थ। और ये हाइड्रोलिक जंप के पहले ये D1 था, मान लीजिए ये, या Y1 था, हाइड्रोलिक जंप के बाद ये Y2 था, तो इस डेप्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, मान लीजिए D1 है, ये D2 है, या Y1 Y2 जो भी बोलिए, इस डेप्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, कंजुगेट डेप्थ। दिस डेप्थ विल बी नोन एज कंजुगेट डेप्थ। तो जैसे यहाँ पे देखिए आपका ये इन द लास्ट स्केच, अब इस स्केच में देखिए, यू कैन सी इन द लास्ट स्केच कि यहाँ पे सुपर क्रिटिकल फ्लो था, इसमें फ्रॉड नंबर की वैल्यू 1 थी, ये धीरे धीरे अचानक चेंज हुआ, अपवर्ड स्टार्ट हुआ, नॉन यूनिफॉर्म सरफेस बना, और यहाँ जाके ये ट्रांजिशन जोन था बीच का, और उसके बाद ये सब क्रिटिकल फ्लो हुआ जिसका फ्रॉड नंबर लेस देन 1 है। ठीक है, तो ये जो डेप्थ है बिफोर हाइड्रोलिक जंप और जो ये आफ्टर हाइड्रोलिक जंप D1 D2, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंजुगेट डेप्थ और सीक्वेंट डेप्थ। तो हमेशा याद रखिएगा कि कंजुगेट डेप्थ और सीक्वेंट डेप्थ आर डेप्थ एट विच स्पेसिफिक फोर्स इच, स्पेसिफिक एनर्जी नहीं बोल रहे हैं, स्पेसिफिक फोर्स इज इक्वल। ठीक है, बस आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से इतना ही ध्यान रखना है कि कंजुगेट डेप्थ क्या बोलेंगे, कंजुगेट डेप्थ इज डेप्थ दैट एट विच स्पेसिफिक फोर्स इज इक्वल। और उसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द डेप्थ ऑफ वाटर बिफोर द हाइड्रोलिक जंप एंड आफ्टर द हाइड्रोलिक जंप आर नोन एज कंजुगेट डेप्थ। और अल्टरनेट डेप्थ क्या था, वैसा डेप्थ जिसके अबाउट स्पेसिफिक एनर्जी जो है कांस्टेंट थी। आपको हमने बताया था कि ऐसा डेप्थ जिसके अबाउट, मान लीजिए एक ऐसा एनर्जी लाइन है, तो ये Y1 और ये Y2, ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक होगा, ये कौन सा डेप्थ होगा, ये अल्टरनेट डेप्थ हो जाएगा। ठीक है, परहैप्स यू गॉट ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। हम देखेंगे एक्चुअली कुछ लेबोरेटरीज में उन्होंने मॉडल्स तैयार करके ये किया था, और कुछ एक्चुअल जो स्पिलवे का है उसका भी। तो ये जो फर्स्ट केस देख लीजिए, जो पहला है मॉडल का है, हाइड्रोलिक जंप ऑन ए स्पिलवे मॉडल, ये बांग्लादेश का किसी के मॉडल का है। देखिए ये यहाँ से कम हुआ, फिर धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल डेप्थ में हुआ। फिर ये दूसरा यू कैन सी कि ये सुपर क्रिटिकल से ये अपवर्ड मूवमेंट बढ़ रहा है इस तरह से, ये सब क्रिटिकल। फिर ये नीचे में आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी अचानक से अपवर्ड राइज हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रोलिक जंप। अब हाइड्रोलिक जंप में एनर्जी इतना लॉस हो रहा है और इतना ह्यूज टर्बुलेंस होता है, इतना ह्यूज टर्बुलेंस है, मतलब कि मिक्सिंग बहुत ह्यूज है, तो इसका कुछ ना कुछ तो हम लोग यूज कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ आउट सम गुड थिंग्स फ्रॉम दिस हाइड्रोलिक जंप। हम लोग हाइड्रोलिक जंप से कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी एप्लीकेशंस ड्रॉ आउट कर सकते हैं, एंड वी विल सी
व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ द हाइड्रोलिक जंप, हम लोग हाइड्रोलिक जंप को कैसे यूज कर सकते हैं इन आवर लास्ट स्लाइड। सी so before taking the applications of hydraulic jump, one more slide is there in which we will classify the hydraulic jump on the basis of Froude number। कौन सा Froude number, किसका? दो Froude number होगा, एक हाइड्रोलिक जंप से पहले मतलब जो सुपर क्रिटिकल था और एक हाइड्रोलिक जंप के बाद जो सब क्रिटिकल था। तो कौन से बेसिस, कौन सा Froude नंबर है ये जो Froude नंबर है ये कौन सा Froude नंबर है, ये है अपस्ट्रीम का Froude नंबर, मतलब जो सुपर क्रिटिकल Froude नंबर था, मतलब जो ये वाला Froude नंबर था इसका, ये पहले वाला रीजन का Froude नंबर। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ अपस्ट्रीम Froude नंबर हाइड्रोलिक जंप हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। मतलब अपस्ट्रीम Froude नंबर के बेसिस पे हाइड्रोलिक जंप को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। अब आपने एक एप्लीकेशन Froude नंबर का पहले भी देख लिया था कि Froude नंबर के बेसिस पे आप फ्लो को बांट रहे थे 3 हिस्सों में, क्रिटिकल, सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल। अब यहाँ भी उसका एप्लीकेशन Froude नंबर का आपको दिख गया। तो पहला केस है कि अगर Froude नंबर की वैल्यू 1 से 1.7 होगा, ये वाला केस, तो ज़्यादा जंप नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग अनड्यूलर जंप। दूसरा है Froude नंबर अगर 1.7 से 2.5 है तो अनड्यूलर से थोड़ा ज़्यादा जंप होगा, इसको बोलते हैं हम लोग वीक जंप। ये जो दूसरा केस है आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ये केस बड़ा है ये। तीसरा है अगर Froude नंबर, अपस्ट्रीम Froude नंबर 2.5 से 4.5 रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीलेटिंग जंप। ये देख लीजिए सी, यहाँ पे आपका थोड़ा सा Froude नंबर बढ़ने से, अपस्ट्रीम Froude नंबर बढ़ने से थोड़ा और इसमें ह्यूज टर्बुलेंस भी बढ़ा और राइज भी ज़्यादा हुआ। फोर्थ आप देखिए, अगर आपका Froude नंबर 4.5 से 9 है तो स्टीडी जंप, ये अचानक से जंप अच्छा खासा करेगा, देख रहे हैं, दिस इज स्टीडी जंप। और अगर आपका अपस्ट्रीम Froude नंबर 9 से ज़्यादा है तो जंप बहुत स्ट्रांग होगा, दिस इज द लास्ट जंप, जब आपका अपस्ट्रीम Froude नंबर 9 से ज़्यादा हुआ। तो यू कैन क्लासीफाई द टाइप ऑफ हाइड्रोलिक जंप ऑन द बेसिस ऑफ अपस्ट्रीम Froude नंबर, मतलब अपस्ट्रीम Froude नंबर के बेसिस पे आप जो है हाइड्रोलिक जंप के टाइप्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। नाउ वी विल कम टू अवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर कि हम लोग हाइड्रोलिक जंप को यूज़ कैसे करते हैं। जैसे हमने पहले ही कहा कि कुछ अच्छी चीज़ें या कुछ अगर हम एप्लीकेशन निकाल सकते हैं हाइड्रोलिक जंप से तो वो किस तरह से करेंगे। तो बेसिकली आपने देखा कि जब भी हाइड्रोलिक जंप हो रहा था तो ह्यूज टर्बुलेंस जनरेट हो रहा था, और इस ह्यूज टर्बुलेंस के कारण क्या हो रहा था, दो चीज़, एक एनर्जी कम हो रही थी और दूसरा क्या, अगर आपको कोई चीज़ मिक्स कराना हो तो आराम से ये मिक्स होगा। तो यही दोनों प्रॉपर्टी जिसमें टर्बुलेंस, ह्यूज टर्बुलेंस के कारण जो एनर्जी कम हो रही है और जो प्रॉपर मिक्सिंग हो रहा है, इसका वजह से हम लोग इसका कुछ एप्लीकेशन भी अपने इंजीनियरिंग फील्ड में करते हैं, दैट वी विल सी। तो पहला जो एप्लीकेशन है कि इट इज़ यूज एज ए एनर्जी डिसिपेटर, मतलब पानी में बहुत ज़्यादा एनर्जी है और अगर आप नीचे उसको गिरा देंगे तो हो सकता है स्काउरिंग कर दे और मिट्टी को जो है वो वहाँ से निकाल दे, डिसलोकेट कर दे। तो वहाँ अगर आप उसका थोड़ा सा हाइड्रोलिक जंप उनका करा देंगे तो एक्सेसिव फ्लो जो होगा, सच एज स्पिलवे और गेट के डाउनस्ट्रीम में जो एक्सेसिव एनर्जी जो होगा उसको आप कम कर सकते हैं। मान लीजिए ई अगर है तो ई के वैल्यू को आप और कम कर सकते हैं हाइड्रोलिक जंप लगा के। दूसरा है कि मिक्सिंग ऑफ केमिकल, आपको बताया कि टर्बुलेंस के कारण मिक्सिंग बहुत आराम से हो सकता है। तो यहाँ अगर आपको मिक्स कराना है तो केमिकल को मिक्स कराने के लिए अगर आप हाइड्रोलिक जंप सिमुलेट कर दे, हाइड्रोलिक जंप वहाँ पे कंडीशन वहाँ पे क्रिएट कर दे तो केमिकल्स की प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगी। तीसरा है कि एरिएशन ऑफ स्ट्रीम्स पॉल्यूटेड बाय बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, कि मान लीजिए कि आपकी कोई स्ट्रीम है, कोई नदी है, वहाँ पे कोई बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, तो वहाँ पे आपको एरिएशन कराना है तो प्रॉपर बहुत मात्रा में ऑक्सीजन की आपको ज़रूरत पड़ेगी और बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा आपको प्रॉपर मिक्स करना पड़ेगा। तो उस केस में भी आप जो एरिएशन है जिसमें आप ऑक्सीजन अप्लाई करते हैं या ऑक्सीजन मिक्स करते हैं इन्वायरमेंट में, तो मतलब इन्वायरमेंट का ऑक्सीजन आप मिक्स करते हैं पानी में, तो वहाँ पे भी आप जो है
हाइड्रोलिक जंप के कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है रेजिंग ऑफ वाटर लेवल इन चैनल फॉर इरिगेशन। मान लीजिए कि जो आपकी चैनल है, ठीक है, जो आपकी कैनाल है या चैनल है इरिगेशन में, मान लीजिए कहीं पे अचानक से थोड़ा आपको वाटर का डेप्थ को बढ़ाना है, तो आपको पता है कि बेसिकली आपके हाइड्रोलिक डेप्थ के कारण आप आगे की दिशा में पानी जो है वो बढ़ता है, पानी का डेप्थ, तो आप यहाँ पे इस प्रॉपर्टी से इसका एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। फिर डीसेलिनेशन ऑफ सी वाटर। डीसेलिनेशन कहने का मतलब है कि सी वाटर में आपको पता है सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, तो अगर आपको सॉल्ट की मात्रा को कम करनी है, वहाँ से उसको निकालना है, तो उसमें भी आप जो है हाइड्रोलिक जंप का यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में है कि इफ़िशिएंट ऑपरेशन ऑफ फ्लो मेजरमेंट फ्लूम्स। ये जो फ्लूम्स है ये बेसिकली स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ओपन चैनल के बीच में लगे रहते हैं, जो कि डिस्चार्ज और डेप्थ के वैल्यूज़ को कैलकुलेट करता है और उसको मेज़र करता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो फ्लूम्स है वो डिस्चार्ज और डेप्थ जो कि ओपन चैनल फ्लो में है उसके वैल्यूज़ को ये मेज़र करता है। तो जो फ्लूम्स में भी आपके हाइड्रोलिक जंप के कंसेप्ट को यूज़ करके उसकी मेजरमेंट में उसकी एप्लीकेशन होती है। तो वी हैव अंडरस्टूड द वेरियस पैरामीटर्स ऑफ ओपन चैनल फ्लो इन दिस लेक्चर। हमने फ्राउड नंबर को समझा, हमने क्रिटिकल, सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल डेप्थ को समझा, हमने स्पेसिफिक एनर्जी कर्व को समझा, और लास्ट में हमने हाइड्रोलिक जंप क्यों होता है, किस तरह से हम जंप को क्लासिफाई कर सकते हैं अपस्ट्रीम फ्राउड नंबर के बेसिस पे, और किस तरह से हम हाइड्रोलिक जंप की प्रॉपर्टीज़ को अपनी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। तो वी हैव completed this module. Very soon we'll be meeting for the next video lecture. Till that, you keep studying.